So in the last class, we have ended about the potential difference. What was the formula for the potential difference? That is V is V the equals to unit Q, of W potential upon difference, Work that is upon measured charge. in volts, that is equals to work done upon Charge. Q. charge, Cool. that is Q. Okay, Charge. so the one point we left here is related to potential difference. As we measure the current, what instrument we use to measure the current? Ammeter. Ammeter, yes. So similarly, in order to calculate the potential difference between any two terminals, we use an instrument known as voltmeter. जैसे एमीटर था वो करंट को मेजर कर रहा था. एमीटर का मतलब क्या था? एम मीटर. मीटर मीन्स मेजरमेंट, एम मीन्स एम्पियर. वैसे ही volt meter. Meter means measurement and volt stands for potential difference. Okay, so similarly, voltmeter is the instrument, or you can say device, used to measure potential difference between any two terminals in an electric circuit. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, बिकॉज मैंने कल लास्ट क्लास में ये डिस्क्राइब किया था दैट वी हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, देयर इज अ potential difference due to which charge flows in the circuit, and the flow of charge per unit time is your electric current. तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ओके, देन we will use voltmeter, and voltmeter is connected is in always parallel. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको पैरेलल अभी देखेंगे क्या होता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है इट इज always connected in parallel. और एमीटर कैसे कनेक्ट करते थे? एनीवन? Series. Series. हाउ वी कनेक्ट द एमीटर? In series. इन सीरीज. और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? इन पैरेलल. दिस पॉइंट Parallel. यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड voltmeter. Ammeter is always connected in series, whereas your voltmeter is always connected in parallel. Now on the same on the page number, your if you have your NCERT with you, and on the page number 202 there is an example. Let us solve this example. What is the question? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? जैसे ही C दिखता है इसका मतलब चार्ज की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, across 2 points having a potential difference of 12 volt. Also the potential difference volt दे रखा है, इसका मतलब potential difference is given to us, and the question is asking for the work done. तो सिंपल अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. V is equals to, so by using V equals to work done upon charge. So यहाँ से I can write down work done will be equals to V into Q. Yes or no? So this is the formula, and the values for V is in the question is 12 volt and Q is 2 coulomb. Therefore, work done will be equals to what? 12 into 2, that is 24. And what is the unit of work done? Joule. 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 Joule is the unit. So 24 joule. So what will be the answer? The work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt is
24 जूल। सिंपल है। ओके, on the same page, that is page number 202, there is an text question. Read the first question. Anyone who will answer the first question? Voltmeter. Name a device that helps to maintain a potential difference. Kumkum, the question is asking to maintain a potential difference, not to measure. देखो यहाँ पे बच्चे काफी मिस्टेक कर देते हैं. The question is asking name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. Potential difference कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था. Potential difference मेंटेन करने के लिए L. yes, सेल और बैटरी, यू कैन से वन एंड द सेम थिंग. सेल और बैटरी की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है. ठीक है ना. वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कितना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन सर्किट के अंदर कौन रखता है, सेल और बैटरी. तो यू विल राइट सेल और यू कैन से बैटरी helps to maintain a potential difference across a conductor. Okay, so this is 1 marks question generally asked. Now the second question. What is mean by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? The question is asking for definition of 1 volt, जो कि अपन ने previous class में लिखी थी. If you remember, what is the definition of 1 volt? Anyone? 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. Very good. When 1 joule of work done is required to move a 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be 1 volt. उसी को लिखना है. So without wasting, we can just copy it from the last class. ये लिखा है देखो, सेम यही है. It is defined as when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference required is 1 volt. और you can say यहाँ पे add कर सकते हैं अपन, then the potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. So this will be your answer for the second question. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया सभी को? I want thumbs up. If you get it, you can just thumbs up. अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण अगर आप क्लास से निकल जाते हो तो यू कैन जस्ट re-enter in the class, okay? And in case you are in the waiting room, you can message me on my WhatsApp number, that the group. Personally, you can message me on the WhatsApp so that I have my mobile with me, so I can see and you will be allowed to enter. Okay, now the second question we have done. Now the third question. Read the third question. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. Each coulomb of charge का क्या मतलब होता है? 1 coulomb. वेरी गुड. Each coulomb का मतलब है, यहाँ पे वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कि दैट योर Q स्टैंड्स फॉर 1 coulomb. पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट. ये 6 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. एंड एनर्जी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर, दैट वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड. आप जितना वर्क करते हो वो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होता है. ठीक है ना. तो वर्क डन और एनर्जी दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है. अगर आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और आप एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो तो वर्क
आप करोगे कुछ ना कुछ, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम यूनिट. वर्क डन इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल, वेयर एज एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल. तो यहाँ पे कुल मिला के वही फॉर्मूला यूज करना है अपन को, दैट इज V equals to work done upon coulomb, and the work done is equals to V into Q, whereas in the question V is 6 volt and Q is 1 coulomb. So what will be the energy? The energy will be equals to 6 into 1, that is 6 joule. So the answer is 6 joule. Is that clear? यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है. So this is all about the numericals related to your potential difference given in your NCERT book. अभी अपन सिर्फ जो NCERT के अंदर है वो कर रहे हैं. I will provide you an extra worksheet related to the topics that we have covered. एक बार अपन थोड़े से टॉपिक्स कर लेते ताकि जो वर्कशीट्स है वो आप सॉल्व कर सकें. वो फिर थोड़ा सा लेवल हाई NCERT का होगा, such that you can attempt the questions coming in your Olympiads also. तो अपन उस लेवल का लेकर चल रहे हैं. अभी इनिशियली एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, बट जैसे वर्कशीट्स अपन सॉल्व करेंगे तो उनका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बोर्ड का तो कवर होगा ही होगा, बट थोड़ा सा वन लेवल अबाव के क्वेश्चंस भी होंगे, तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज योर सर्किट डायग्राम. देखो बोर्ड एग्जाम में कभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ वायर क्रॉसिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब और रेजिस्टर और रियोस्टेट. तो ये कुछ कंपोनेंट्स है. जब सर्किट डायग्राम्स अपन देखते हैं तो यहाँ पे वो कंपोनेंट्स नजर आएंगे, उसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, वो अपन को याद होना चाहिए. ठीक है. तो कुछ जनरल से सर्किट डायग्राम्स है आपके, जैसे इलेक्ट्रिक सेल और यू कैन से बैटरी. तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज माय, इसको अपन दैट इज दी, और यू कैन से ये जो पॉजिटिव बड़ा वाला एंड जो है दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल. दिख ही नहीं रहा है, व्यू से करते, पॉजिटिव टर्मिनल. ओके. एंड ये जो छोटा वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल का होता है, ये याद रखना है आपको, और ये मार्किंग करना जरूरी है. अगर क्वेश्चन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक सेल सिंपली ऐसे बना दिया, कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आप अपना मार्क्स लूज कर सकते हो. और इस तरीके से मत बना देना दोनों इक्वल बना दिए, दिस इज रॉन्ग मेथड. एक टर्मिनल की लेंथ बड़ी होनी चाहिए दूसरे छोटे वाले टर्मिनल से, और फिर आपको नेमिंग भी करना है, दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये तो सिंगल सेल था, अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन है, देखो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा. यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो ये अल्टरनेटिव नेगेटिव नेगेटिव कभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है, अगर आपको सेल को एड अप करना है. जैसे कल क्वेश्चन पूछा था मैंने एक, वो समझ में आया था? So the alternate terminals should be in series. यहाँ अगर नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा. ठीक है. सो इन दिस मैनर यू हैव टू ऐड द टर्मिनल्स. नाउ द प्लग की, दैट इज योर स्विच इज ओपन. अगर मेरा स्विच मेरा कैसा है, ओपन स्विच है, स्विच इज सॉरी स्विच इज ओपन, तो ओपन है तो यहाँ पे देखो ये जो दो सेमीकोलन है इनके बीच में डॉट नहीं आएगा. डॉट नहीं है इसका मतलब मेरा स्विच अभी ओपन कंडीशन में, यानी ओपन में करंट फ्लो
नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। एंड माई व्हेन स्विच इज क्लोज्ड है तो ये डॉट को मेंशन करना जरूरी है। ये जो डॉट है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दैट डिनोट दैट आपका करंट क्या है, सर्किट के अंदर अभी फ्लो हो रहा है। सो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आप नेग्लेक्ट इग्नोर कर देते हो एंड यू लूज योर मार्क्स, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। फिफ्थ इज अ वायर इज जॉइंट। अब देखो इस वायर जॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने दो वायर्स आपस में मिल रहे हैं। एक तो ये मेरा वर्टिकल वायर आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल वायर है। इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है तो आई हैव टू शो अ बुलेट डॉट वेयर दी वायर्स आर जॉइनिंग। लेकिन अगर वायर्स एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे, बस एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, यानी अभी इसमें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है, जैसे 1 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, तो इस वायर के अंदर इस तरफ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 3 एम्पियर, बिकॉज 1 एम्पियर यहाँ से एंड 2 एम्पियर यहाँ से एडअप हो जाएगा। बट हेयर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे वापस 1 एम्पियर ही जाएगा और यहाँ पे 2 एम्पियर ही जाएगा, बिकॉज वायर्स आर नॉट ज्वाइन, दे आर विदाउट ज्वाइनिंग। तो विदाउट ज्वाइनिंग को शो करने के लिए आपको ऐसे करना। एग्जाम में विदाउट ज्वाइनिंग ऐसे मत कर देना, दिस विल बी रॉन्ग। यू हैव टू मेक अ सेमी सर्किल, this you have to show. Is that clear? So this is the right method, this is wrong. Then the electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ नहीं है, सिंपल सा सिंबल है इस टाइप का बल्ब। अगर ये आपको कहीं पे भी शो कर रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, एक जिगजैग लाइन बनानी है इस तरीके से। अगर सर्किट के अंदर आपको रेजिस्टेंस शो करना है, देन यू हैव टू जस्ट हैव अ जिगजैग लाइन। 9th है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। इसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा, बट इसमें अपन वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब चेंज कर सकते हैं। तो चेंज के लिए वी हैव टू शो एन एरो। या तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो, एक दूसरा मेथड भी है, दैट इज लाइक दिस, एन एरो कमिंग विद अ zigzag line. So these are the two ways in which you have to show the variable resistance or rheostat. ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे, आपके लैब के अंदर भी अवेलेबल है। एक स्लाइडर होता है, कॉइल होती है वाउंड अप, और उसको आप स्लाइड कर सकते हो तो कम ज्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। देन योर टू डिवाइसेस जो अपन ने पढ़े अभी, एमीटर मेजर्स द करंट एंड वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। इनका तो सिंपल है, सर्किल के अंदर ए, कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, और ये कैसे कनेक्ट होगा याद रखना है, सीरीज में लगाएंगे एमीटर को। और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, इन पैरेलल। यहाँ पे भी प्लस माइनस शो करना है, यानी यहाँ पे मेरा कौन सा टर्मिनल आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ जो होगा एंड वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन यहाँ से वोल्ट मीटर के अंदर कैपिटल वी हो जाएगा और प्लस माइनस शो आपको करना है। So this is all are the simple circuit diagrams that you have to remember, questions एग्जाम में आ सकते हैं। किसी में भी प्रॉब्लम, कोई भी सर्किट डायग्राम और उसके सिंबल में, इजी है। ये इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको? अश्मिता, यस सर। क्या हुआ, बार बार क्या हो रहा है, कनेक्शन आ रहे हो? सर कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। ओके, सो दिस सर इज, कनेक्ट नहीं हो रहा है। सॉरी सर कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, देयर माइट बी नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, कोई बात नहीं। चलो, ये बात हुई अपने सर्किट डायग्राम। सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, एक दो बार आप याद करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे तो याद हो जाएगा, नॉट अ बिग डील।
या फिर इसका एक प्रिंट आउट लेके आप अपने रूम में पेस्ट कर सकते हो, तो 2-3 बार देखने पे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन को ड्रॉ भी करना है सर्किट डायग्राम्स के अंदर, तो नॉट अ बिग डील। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर ओम्स लॉ। देखो, बोर्ड एग्जाम की अगर अपन बात करें तो ओम्स लॉ ऐसा टॉपिक है जिसके बिना क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इस क्लास का और इस चैप्टर का, ठीक है। ओम्स लॉ से आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो एग्जाम, तो ओम्स लॉ का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो पूरे चैप्टर में अपन के साथ रहेगा। तो क्या है ओम्स लॉ, क्या है, इसको अपन एक सिमुलेशंस के थ्रू समझते हैं। If you have your NCERT with you, please open the page number 203. पेज नंबर 203 पे एक एक्टिविटी है 12.1। ये एक्टिविटी अपन परफॉर्म करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस एक्टिविटी को अपन यहाँ पे लेके आते हैं। क्या है वो एक्टिविटी, एक सेकेंड, ओके। अगर बुक है आपके पास तो बुक से आप देख सकते हो, वरना मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि समझाने में इजी हो जाएगा, ओके। Set up a circuit as shown in figure 12.2. This is the figure 12.2. ये वैसे आप जब स्कूल्स रीओपन होंगी तो आपको ये परफॉर्म भी करना है वहां पे, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, और ये एक्टिविटी ही है वो परफॉर्मेंस। देखो, ये सर्किट है मेरा, एक बार सर्किट को देखते हैं। दिस इज माय सर्किट एक्स एंड वाई। ये एमीटर है, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक के मीन स्विच विच इज क्लोज्ड। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने बैटरीज लगा रखी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। इज दैट क्लियर? इसी सर्किट को अपन यहाँ पे देखते हैं एक बार, जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ओके। वही सर्किट है, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा वहां पे। अभी परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी को, पहले सर्किट डायग्राम समझ लेते क्या है। ये सिमिलर टू इसी सर्किट के अकॉर्डिंग है, ये आपका जो यहाँ पे दे रखा है ऑन पेज नंबर, आपके जो 204 पेज नंबर पे जो फिगर 12.2 है वैसे ही ये है। ये मेरा निक्रोम का वायर है एक्स वाई, ठीक है। ये रजिस्टर है मेरा आर। दिस इज माय वोल्ट मीटर, दिस इज माय एमीटर, दिस इज बैटरी और सेल यू कैन से, ठीक है। एंड दिस इज माय स्विच के, and these are my connecting wires. So this is the circuit which we have similar to that of your figure 12.2. Now what is the activity saying? Read the activity. Set up a circuit, जो कि अपन ने कर दिया, consisting of a nichrome wire. ये X वायर कौन सा है? निक्रोम का वायर है, निक्रोम वायर ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर। अभी लेंथ के ऊपर अपन कुछ नहीं कर रहे। एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, 4 सेल चाहिए 1.5 वोल्ट का। ये जो बैटरी मैंने लगाई है दैट इज हैविंग अ 1.5 वोल्ट, ये भी वही है। निक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल। एक बार एक नंबर का क्वेश्चन आया है, निक्रोम इज मेड अप ऑफ विच पेरेंट मेटल्स, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो निक्रोम का याद रखना है, इट इज एन अलॉय, अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल, ठीक है। Now the second point is first use one cell,
एक सेल यूज करना है, ये मैंने एक सेल ही यूज किया है. एज द सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर. जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, व्हाट वी हैव टू डू, इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल देख रहे हो आप, इस टेबल के अंदर वी हैव टू नोट डाउन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर, दैट इज द एम्पियर करंट आई, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर, दैट इज इन वोल्ट, जो कि कहाँ से मिलेगा, वोल्ट मीटर से. तो आई एमीटर से अपन को यहाँ पे लिखना है, और पोटेंशियल डिफरेंस वी से वैल्यूज यहाँ रखनी है. और उसके बाद अपन को V बाय आई का वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी है. तो सबसे पहले वही है, टेबुलेट द डैम इन द टेबल गिवन. तो पहले ही वही काम करते आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी पे. कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है, किसी का मैसेज आया है. V इक्वल्स टू आई आर. यस कोमल, यू आर राइट. ओके, नाउ सी हियर, सारा ध्यान स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ये वही डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है. ये देखो बैटरी मेरे पास 1.5 वोल्ट की है, बॉटम पे देखो 1.5 वोल्ट लिख रखा है. द येलो वन इज माय पॉजिटिव एंड द ब्लैक वन इज माय नेगेटिव एंड. ये एमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, वोल्ट मीटर भी मेरे पास है. अभी जीरो दोनों में आ रहा है, क्यों, बिकॉज द स्विच इज ओपन. अब जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करता हूँ, रीड द वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज? यस, the current is 0.15 ampere and the potential difference is 1.5. 1. तो ये अपन यहाँ लिख देते हैं 0.15 एम्पियर एंड 1.5 वोल्ट. पहले एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं चारों, फिर अपन ये V बाय आई कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. नाउ रीड द नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग्स. वही चीज करना है. अब एक सेल की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 2 सेल कर रहा हूँ, यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, इसको कट किया, इसको शॉर्ट किया, एक सेल मैंने और लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया. अब देखो रीडिंग्स, रीड द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर. 0.3 एम्पियर इन एम्पियर एंड 3 वोल्ट इन द वोल्ट मीटर. तो इसको लिख लेते हैं 0.3 एम्पियर एंड 3.0 वोल्ट. वही चीज करनी है, रिपीट दी अबाव स्टेप्स. वही चीज करना है, रिपीट दी अबाव स्टेप यूजिंग नाउ 3 सेल. पहले 1 सेल के साथ, फिर 2 सेल्स के साथ, अब 3 सेल्स के साथ. तो वो यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो शॉर्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको वापस ज्वाइन. नाउ रीड दी वैल्यूज इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर. 0.45 एम्पियर and 4.5 volt. So 0.45 ampere and 4.5 volt. Now again use the one last, एक और सेल यूज करना है अपन को यहाँ पे. So मैंने यहाँ पे एक सेल और ऐड कर दिया. तो ये देखो 4 सेल हो गए मेरे पास. ये सारे 1.5 के हैं ईच सेल. अब देखो रीडिंग्स, करंट इज 0.6 एंड वोल्टेज इज 6 वोल्ट. तो इसको लिख लेते हैं 0.6 एंड 6.0 वोल्ट. सो ये सारी रीडिंग्स आ गई अपने. ये परफॉर्म करना है आपको लैब्स के अंदर. तो सिमिलर इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, वायर्स को ज्वाइन करते हुए, निक्रोम वायर का यूज करते हुए. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट टेबल. क्या है, V बाय आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करना है करंट से. सो इफ आई यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 0.15. तो ये पॉइंट हटा यहाँ 100, ये हटा यहाँ 10, ये से ये कैंसिल, तो ये बन गया 150 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 10. तो ये हो गया मेरे पास 10. V बाय आई की वैल्यू क्या आ गई, 10 वोल्ट पर एम्पियर. सिमिलरली नेक्स्ट केस के लिए क्या है, 3/0.3. तो ये तो डायरेक्टली क्या आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है. 4.5 डिवाइडेड बाय 0.45, ये भी 10. इसको कैलकुलेट करोगे 10 आएगा. सिमिलरली ये भी 10. नाउ रीड द लास्ट बुलेट पॉइंट. कैलकुलेट, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V and I and observe the nature of the graph.
अब कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है V और I का। तो मैंने किया यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ ग्राफ, ये V एंड ये I, दिस इज माय V एंड दिस इज माय I। तो इसको स्टार्ट करते हैं। V को अपन 0, दिस इज 0, दिस इज 1.5, दिस इज 3, दिस इज 4.5 एंड दिस इज 6। इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं 0.15, 0.15, 0.3, 0.45 एंड 0.6। इक्वल डिस्टर्बेंस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी वैल्यूज। नाउ प्लॉट करना है मुझे ग्राफ। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम टिल नाउ? No. प्लॉट करना है v x y एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस और i मैंने x एक्सिस पे ले लिया। अब कुछ नहीं करना, इसको प्लॉट कर दो। 0.15 पे 1.5 वोल्ट, 0.3 पे 3 वोल्ट। यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट तो नहीं है ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ पेपर होगा वहाँ पे, तो आपको ग्राफ पेपर पे इजीली एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करना है। एंड 0.6 यहाँ कहीं होगा। तो ये आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन रही होगी इस टाइप से। ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी ग्राफ पेपर भी बनाओगे इक्वल डिस्टर्बेंस पे तो ये आपके पास इस टाइप का ग्राफ पेपर, स्ट्रेट लाइन। So what is the conclusion of this activity? क्या किया अपन ने at last? What we are doing, we are just adding the potential difference। हम देखो हर स्टेप में क्या कर रहे थे, पहले एक सेल लिया, फिर एक से मैंने दो किए, दो से तीन सेल, तीन से चार सेल। तो जब मैंने वैल्यूज देखी करंट की, तो जब एक सेल था मेरे पास तब करंट की वैल्यू थी 0.15। डबल कर दिया सेल तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, देखो 0.3, जस्ट डबल हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर क्या किया, इंक्रीज किया। हर बार मैं नया सेल लगा रहा था, पहले 1.5 वोल्ट था, एक और ऐड कर दिया, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, जब 0.3. हाँ तो 1.5 No, वोल्ट 3. करंट लेटर से मेरे पास था 0.15 एम्पियर। जब इसको मैंने इंटू 2 किया तो कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो ये भी कितना हो गया, इंटू 2, यानी 3 वोल्ट पे मुझे कितना मिलेगा, 0.15 इंटू 2 0.3। तो वो भी रीडिंग आ रही है देखो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने पे करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। यानी जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया है उतना ही करंट इंक्रीज हो गया। तभी तो इनका जो फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आई बात समझ, क्योंकि v बाय आई में क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डबल कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी डबल हो रहा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। So this is the main conclusion of performing this activity. What is the conclusion? Conclusion is when potential difference in a circuit get increased, then the current flowing in the circuit also increases. This is the main conclusion of this activity, and the ratio of potential difference upon current, that is V by I, is equals to constant. So this is the main point we have to remember by this activity कि V by I का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है।
और इसी एक्टिविटी से आपका ओम्स लॉ आता है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. If the physical components of a conductor remains constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to potential. Is directly proportional to? Is directly proportional to potential difference. Yes. So this is, let us say, write it down. Ohm's law statement. According to Ohm's law, the potential, or we can say the current flowing in an electric circuit is directly proportional to the potential difference applied where the physical condition such as temperature remains constant. क्या मतलब है इसका कि ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वेयर फिजिकल कंडीशन. इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, इसको भूलना नहीं है. फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब है कि टेम्परेचर जो है, आप जिस रूम पे, जिस टेम्परेचर पे, जिस एक्सटर्नल कंडीशंस में जो परफॉर्म कर रहे हो, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ये रिलेशन ओबे नहीं होगा, फिर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. देयरफॉर वी कैन से मैथमेटिकली what I can say, V is directly proportional to I. This is the symbol of directly proportional. V is directly proportional to I, or V by I is a constant, and this constant is nothing but your resistance. And according to our example, resistance of nichrome wire. So if anyone say what is the resistance of this wire in this circuit, this is nothing but the resistance. जो कि कितना आया 10. तो अगर क्वेश्चन में आता है what is the nichrome wire resistance, so we will say it is 10, and the unit of resistance is ohm. The SI unit of resistance is ohm. ओम्स लॉ के जो साइंटिस्ट थे आपके, उनका नाम है, फुल नेम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम. देखो पेज नंबर 204 पे सेकंड पैराग्राफ में लिख रखा है. इन्होंने रिलेशनशिप दिया था इन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. तो उन्हीं के नाम पे ओम्स लॉ उन्होंने लॉ दिया था. तो ये जो कांस्टेंट टर्म आई है, इसकी जो यूनिट है उन्हीं के नेम के ऊपर है, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज ओम. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल है इस टाइप से, इट इज अ ग्रीक सिंबल. इसको इसी टाइप से करते हैं, सेमी सर्कल विथ टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन है और विथ अ सेमी सर्कल. So this is a symbol of ohm. OHM is the spelling of ohm, and the symbol is, this is a Greek symbol and its symbol representation is like this. So this is Ohm's law. Anyone having doubt in Ohm's law? ये statement बहुत ज़्यादा important है. This is very important statement.
क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और विद न्यूमेरिकल, इसका कोई एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है तो क्वेश्चन बन जाता है कम से कम 3 मार्क्स का। सब पार्ट्स में आता है स्टेट ओम्स लॉ एंड ऑन बिहाफ ऑफ ओम्स लॉ एक न्यूमेरिकल आपका सिंपल सा आ जाए। एनीवन हैविंग डाउट इन ओम्स लॉ? नो, नो वन इज हैविंग डाउट। अब रेजिस्टेंस के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट ओम्स लॉ, और इसको V by R को ही अपन आगे कर रहे हैं। So V by I is equals to R. R stands for resistance. ये फॉर्मूला, या फिर V equals to IR ये फॉर्मूला, और I equals to V by R. It can be used simultaneously according to the question. रेजिस्टेंस पूछा है, वोल्टेज और करंट दे रखा है तो V by I यूज करेंगे। करंट एंड रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज निकालना है तो V equals to IR ये यूज करेंगे, एंड I equals to V by R। तो आप एक ही याद करो, दैट इज दिस वन, V equals to IR। V से याद रख सकते हो V equals to IR। वीर याद रहता है अपन को, सलमान खान मूवी वीर, तो वीर से याद कर सकते हो VIR, वीर, V equals to IR। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सा याद हो जाएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर अपन को सॉल्व करना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल सा है फॉर्मूला V equals to IR। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, अब ये जो रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट टर्म आई है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअल में देखो रेजिस्टेंस तो ये ठीक है, अपन ने वर्ड दिया, रेजिस्टेंस का इंग्लिश में क्या मीनिंग है? यानी कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस और रेजिस्ट? रेजिस्टेंस वर्ड आया रेजिस्ट से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रेजिस्ट? एनीवन? रेजिस्टेंस का तो अगर फिजिक्स में बोलो तो हिंड्रेंस, जो कंडक्टर में जो हिंड्रेंस होती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं। ओके, एंड इंग्लिश में? सर अभी तो फिजिक्स पढ़ रहे, कहाँ इंग्लिश में जा रहे हो सर? फिजिक्स का याद है वो बहुत है ना। देखो रेजिस्ट इंग्लिश में तो किसी चीज के लिए मना करना, मतलब ऐसे डिनाई, मना करना, या फिर आप कह सकते हो उसको अपोज करना एक तरह से। जैसे एवरीवन रेजिस्ट द चेंज, हम कोई भी चेंज होता है उसको रेजिस्ट करते हैं, अपन उसको आसानी से नहीं अपनाते हैं। तो रेजिस्ट का इंग्लिश में मीनिंग है टू अपोज और टू प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस, और यू कैन से टू प्रोवाइड सम अपोजिशन। रेजिस्ट का मतलब यही होता है उसको मना करना, उसको अप्लाई नहीं होने देना, दैट इज द रेजिस्ट। तो रेजिस्ट से ही, इंग्लिश वर्ड से ही ये वर्ड बना है फिजिक्स के अंदर, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन सी चीज फ्लो हो रही है? करंट, है ना। यहाँ पे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो होने का रोकने का नाम ही क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब करंट फ्लो होना चाह रहा है, चार्ज फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हो? नहीं भाई, नहीं जाना, वहीं रहो, वहीं रहो। तो जितना ज्यादा आप उसको रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। यानी अगर मेरे पास, लेटस से मेरे पास मान लो एक 5 ओम का कोई वायर है और एक मेरे पास 50 ओम का कोई वायर है, किसके अंदर करंट इजीली फ्लो होगा? बाकी सारी कंडीशन सेम है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक वायर 5 ओम का है, एक वायर 50 ओम का है, किसके अंदर करंट इजीली फ्लो होगा? सर 5 ओम। वेरी गुड, 5 ओम के अंदर आपका करंट इजीली फ्लो होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये कम रेजिस्ट कर रहा है, वेयर एज 50 ओम बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आई दैट इज करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे आई दैट इज करंट की वैल्यू कम। अदर कंडीशंस आर सेम, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सारी चीजें सेम है। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा सेंस वही है, अगर रेजिस्टेंस की अपन डेफिनेशन लिखे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर,
it is the property of a conductor or a wire, you can say, or a wire to resist the flow, to resist the flow of charge. आप थोड़ा तेज बोल सकते हो, बहुत धीरे आ रही है आवाज, पूरा फुल है वॉल्यूम फिर भी. Okay, I am saying it is the property of a conductor or a wire to resist the flow of charge in an electric circuit. So this is the definition of your resistance. कैसे डिफाइन करेंगे? ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की. प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी कंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही. ठीक है, ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो. देयर इज नो सच कंडक्टर अवेलेबल इन द कंप्लीट वर्ल्ड और यूनिवर्स हुज रेजिस्टेंस इज जीरो. अब आप बोलोगे सर तो फिर करंट कैसे फ्लो होता है? करंट तो फ्लो हो रहा है, उसको रेजिस्ट भी कर रहा है. जैसे आप कॉपर वायर, अपनी जो वायरिंग्स होती है वो सारी कॉपर वायर की है, एंड वी नो दैट कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन फिर भी उसका रेजिस्टेंस होगा. वो अलग बात है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल. तो ये आपको याद रखना है. गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ये तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं. गुड कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. बैड कंडक्टर का थोड़ा ज्यादा होगा और इंसुलेटर का बहुत ज्यादा होगा. अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का है तो वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा. जैसे वुड हुआ, रबर हुआ, ये सारे वी यूज दीज टाइप ऑफ मटेरियल एज अ इंसुलेटर. आपने देखा होगा जो अपन स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं या जो टेस्टर जो आता है आपके घरों पे जो अवेलेबल है, उसका जो बैक पोर्शन होल्डिंग वाला जो पार्ट रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ जनरली ऑफ प्लास्टिक. एंड वी नो दैट प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. वो करंट को पास नहीं होने देता. क्यों नहीं पास होने देता है? सर्किट कंप्लीट है लेकिन फिर भी पास नहीं होने दे रहा, बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो वो प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की. अपन यहाँ पे कंडक्टर के लिए वर्ड यूज करते हैं रेजिस्टेंस. जैसे अपन इंसुलेटर के लिए बात करेंगे तो एक और टर्म आएगा जब रेजिस्टेंस को नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट रेजिस्टिविटी, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे. बट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है कि कोई भी पूछे तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और अ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये याद रखना, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्ट करता है चार्ज के फ्लो होने को. इज दैट क्लियर? So R will be equals to V by I. And if I talk about 1 ohm, how will you define 1 ohm? Anyone? जैसे 1 वोल्ट किया था, 1 एम्पियर किया था, वैसे ही 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? Anyone? 1 ohm. One ohm can easily be defined as the resistance offered by a conductor when current flowing through that conductor is 1 ampere when, or you can say an, potential difference across two ends is 1 volt. across two ends of that conductor
is 1 volt. That is R, or you can say 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. So the resistance offered by a conductor when current flowing through the conductor is 1 ampere and the potential difference across the conductor is 1 volt. जब 1 volt का potential difference आप दो ends पे रख रहे हो and current flow कितना हो रहा है 1 ampere, then the resistance of that conductor will be said to be 1 ohm. That is the definition of 1 ohm. Is that clear? So today's क्या सीखे quiz is true or false. If resistance, first is if resistance of a wire increases, then current also increases. True or false? False. False. All agree? False? Yes, sir. The answer is false because resistance अभी अपन ने पढ़ा है क्या होता है, resist the flow of charge. वो करंट को फ्लो ही नहीं होने चाह रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. इज दैट क्लियर? Okay, so it is false. Now the next is Philip. According to Ohm's law, dash is directly proportional to potential difference where dash remain constant. Yes, Palak. Current is Palak, wait. कुमकुम सारे जवाब आप ही दोगे क्या? Yes, Palak. Current. Yes, current is directly proportional to potential difference where Komal. Yes, Komal, can you hear me? Ruchi? So no idea about the answer. Why? मैं बता दूं. So resistance. मैं बता दूं. रुचि देखो मैंने ये बताया था, ऊपर देखो. नहीं, रुचि ही बताएगी. रीड करो ये लाइन. Read the last line where the physical condition. The physical conditions such as temperature remains constant. So what will be the answer here? Physical conditions. Or you can say temperature or physical condition, both are right. Temperature. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर तीनों होंगे ना. Sorry? लेंथ, एरिया और टेम्परेचर तीनों होंगे. We are here on, मतलब अगर मेरा वायर तो कांस्टेंट है, आई एम नॉट चेंजिंग द मटेरियल. ओके, मेरा जो वायर है वो तो वही फिक्स है. अकॉर्डिंग अपन अभी ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के अंदर अपन अभी नहीं गए कुमकुम. ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ की डेफिनेशन होगा तो हम सिर्फ टेम्परेचर मेंशन करेंगे कि लेंथ, एरिया, टेम्परेचर तीनों. ओनली बिकॉज वी अपन ने पहले ही यहाँ पे देखो ओम्स लॉ के अंदर अपन ने पहले ही लिख रखा है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing in electric circuit is directly proportional to the potential difference where the physical conditions such as temperature remains constant. अपन इलेक्ट्रिक सर्किट को चेंज नहीं कर रहे. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब उसके अंदर जो वायर्स है, रेजिस्टेंस है और कोई भी चीज है, उसके अंदर अपन ना तो कुछ ऐड कर रहे हैं ना कुछ अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सर्किट जो है उसके लिए बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, इसलिए अपन ने लिखा है फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट का मतलब क्या हुआ, वो कंबाइंड है. ना तो मैं आप कंडक्टर को चेंज कर सकता हूँ ना कोई वायर को चेंज कर सकता हूँ. वो अपन बाद में बात करेंगे, वो ओम्स लॉ का पार्ट नहीं है. वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वायर का, उसमें बात करेंगे लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड ऑल.
Factors affecting resistance हाँ, of conductor. what are the factors affecting resistance? उसके लिए अपन एक, जैसे आज ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट किया था, नेक्स्ट क्लास में एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन टुडेज, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए गिवन सर्किट is 12 volt and current flowing is I, then what will be the value of current flowing when potential difference is 18 volt in terms, आंसर आपको देना है in terms of I, in terms of I के रेस्पेक्ट में आंसर देना। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ गिवन सर्किट इज 12 वोल्ट एंड उस वक्त करंट फ्लो हो रहा है आई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस उसी सर्किट के अंदर 18 वोल्ट कर दिया। क्विक, I want answer fast. ओके, कोमल ने आंसर दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। करंट एंड टेम्परेचर, ओके, करंट एंड टेम्परेचर, गॉट इट, गुड। एनीवन? यस, कोमल, कुमकुम, पलक, रुचि। सिंपल है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या है क्वेश्चन? रीड करो वापस एक बार। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ गिवन सर्किट, कोई सर्किट है मेरे पास, उसमें अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट, और उस वक्त करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। अब मैंने क्या किया, करंट की वैल्यू बताओ अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 12 से इंक्रीज करके कितना कर दिया? 18 वोल्ट। तो उस वक्त अब करंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आई बताना है। अगर पहले आई था तो अब कितना होगा? ऑप्शन अगर मैं दूं, लेट अस से 2i, बी आई बाई 2, सी 3i/2 और डी 2i/3। अब आया समझ में? ओके, चलो देखो इधर, बहुत टाइम हो गया। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना है। इधर ओलंपियाड्स के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। वी नो दैट बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V बाय आई इज कांस्टेंट। एक सर्किट के लिए V बाय आई की वैल्यू रहती है कांस्टेंट। तो आई कैन से अगर पहले 12 वोल्ट था और करंट आई था, तो इसका आई कैन से ना V1 बाय I1 इज इक्वल टू V2 बाय I2। भाई पहले जो रेशियो था और बाद में जो रेशियो है वो सेम होगा ना। तो 12 बाय आई Yes, तो sir. पहले का रेशियो है, और बाद में कितना हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस? 18, और इसको लेटर से आई डैश मान लेते हैं। तो आई डैश की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी इन टर्म्स ऑफ आई, तो 18/12 इंटू आई, तो ये कितना हो गया? 3/2i। सो आई डैश इज इक्वल्स टू 3/2i। आंसर सी। किसको समझ में नहीं आया? आई वांट थम्स अप। ओके, कुमकुम को आ गया। व्हाट अबाउट पलक एंड रुचि?
Okay, Palak को भी आ गया. Yes, sir, Okay. got it. Got it? So this is all about Yes, today's sir. session. इसको मैं अभी शेयर कर दूंगा. This PDF will be shared to your respective group. Okay, anyone having doubt in today's session? No, sir. Okay. No. So we will continue from this in the next class, and next class will be very important. Okay. Also, you can see the previous and recordings on my YouTube channel. Okay, you can also see the previous classes on my YouTube channel. Also, I will upload it probably in tomorrow morning, and the PDF will be shared as soon as possible, just within half an hour. Okay. Thank you. You can leave now. Thank you, sir. Okay. Bye. Keep learning. Enjoy.